beginning with the beautiful ayat of Holy Quran. ایک ایگزامپل ہے ٹرانسفارمیشن لیڈرشپ کی فرعون کی قرآن مجید میں. اس نے اپنے فالوورز کو بہت پکا کیا ہوا تھا اور وہ جو ان سے کروانا چاہتا تھا وہ کرتے تھے. جو کبتی تھے اس کے اپنے قبیلے کے لوگ تھے اور وہ کرتا کیا تھا. Verily Pharaoh exalted himself in the land and made its people insects. سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ اس نے ہی ایگزالٹڈ ہمسیلف اپنے آپ کو بڑا گرینڈ بڑا گریٹ بڑا بہت بڑا انسان پہلے کہنا شروع کیا. اینڈ گریجولی اٹ لیڈ ٹو claim led to claim by him to be a god of his people. اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے. اگر آپ بھی اپنی ٹیم میں یا اپنے گروپ میں ایسے شروع کر دیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیں تو ٹیم جو ہے وہ اس کو فردر ری انفورس کرتی ہے. اور کچھ چاپلوس لوگ کچھ غلامانہ ذہن کے لوگ کچھ زیادہ کنگ سے زیادہ فالوور جو ان کے وفادار ہوتے ہیں more loyal to the king وہ لوگ اس کو لیڈر کو اور زیادہ بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں اور گریجولی وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے. میں نے ایک پرسنلی ایک ایگزامپل آبزرو کی. ایک شخص تھا جس نے شروع میں تھوڑا بہت دین کے لیے کام کرنے کی کوشش شروع کی. آئی تھنک ہی واز working very well لیکن to the later part of it after about 7-8 years کچھ لوگوں نے جوائن کیا اور وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ٹائپ تھے اور غلامانہ ذہن کے تھے. انہوں نے اس شخص کو وہی کہنا شروع کر دیا جو ٹریڈیشنل یہاں پہ ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹ سسٹم چلتا ہے پیری فقیری والا. اس کو یہ اسٹائل بھی اور پوائنٹ کھلی ہوئی ہے وہ آ جاتی ہے سامنے. سیشن 10 ہم وی آر ایٹ سیشن 11. جی سر. تو وہ اس شخص کو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی آپ بہت بڑے بزرگ ہیں اور پھر پیر کہنا شروع کر دیا اور پھر بیعت کر دی اور پھر فائنلی جو لاسٹ لفظ ہے کرپٹرس والا ہی آلسو بیکیم ون آف دی کرپٹ. تو پھر ہم نے اس کو چھوڑ دیا. جب ہم نے چھوڑا تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی اور اس نے بڑے کاؤنٹر میں لینے کی کوشش کی پر وہ سارے فیل ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فیل کیے. تو جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو ٹرانسفارم کر دیتے ہیں لیکن نیگیٹیولی ٹرانسفارم کرتے ہیں وہ پہلے اپنے آپ کو ایگزالٹ کرتے ہیں یعنی اپنے آپ کو بہت گرینڈ اور اپنے آپ کو بہت بڑا ڈفرینٹ اور سپر ہیومن بینگ پوز کرتے ہیں اور وہ اگر زیادہ اس کو کیا جائے تو دین دے اسٹارٹ کلیمنگ ٹو بی گاڈ اور دے اسٹارٹ کلیمنگ ٹو بی سم تھنگ ڈفرینٹ. جیسے جس شخص کی میں اگزامپل دے رہا ہوں اس نے بھی ایسے ہی کیا. وہ ایون کانٹ ٹیل یو کہ وہ کس لیول تک چلا گیا اور اپنے آپ کو کیا سمجھنا شروع ہو گیا. اور شاید یہ جو قادیانی ہے وہ بھی شروع میں کچھ اس کی ڈفرینٹ ٹائمس تھے لیکن جب لوگوں نے اس کو پھونک دینا شروع کر دی اور وہ فائنلی پھر اپنے کیا سے کیا بن گیا. تو ہم نے اپنے آپ کو لوگوں جیسا اپنی ٹیم کا ایسا سمجھنا ہے پارٹ آف دیم لائک دیم with them, work with them, sit with them, eat, walk with them, etc. etc. ان کا حصہ جیسے ہمارے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان جیسا اپنے جیسا ہر انسان کو سمجھتے تھے. ہر انسان کو رسپیکٹ کرتے تھے ہر انسان سے پیار کرتے تھے. تو اور قرآن مجید میں بار بار آتا ہے
کہ इनको बता दो, मैं तो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता तो तुम्हारे लिए क्या करूँगा। इस तरह की बातें हैं जिससे एग्ज़ाल्ट नहीं होते। ये एग्ज़ाल्ट करने वाली जो हैबिट्स हैं, बातें हैं, ये फ़िरौनियत या शैतानियत की हैं। और फिर दूसरा तरीका उनका ट्रांसफॉर्म करने का ये है कि मेड इट्स पीपल इंसेक्ट्स। आजकल भी ये बहुत इम्पोर्टेंट एक टैक्टिस कुछ नेगेटिव और सूडो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स यूज़ करते हैं, डिवाइड एंड रूल वाला। अंग्रेज ने भी यहाँ सब कॉन्टिनेंट में जब रूल किया तो वो यही तरीका यूज़ करते थे, डिवाइड एंड रूल। लोगों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और फिर खुद ऊपर बैठ के रिमोट कंट्रोल से एक ग्रुप को कभी खींच देते, कभी दूसरे ग्रुप को, वो आपस में ग्रुपों को एक दूसरे के जरिए खींच देते। तो आपने अपनी टीम को डिवाइड इनटू सेक्ट्स और ग्रुप्स नहीं करना, बल्कि उनको यूनाइटेड रखना है। और यूनाइटेड जब टीम होगी तो उनकी परफॉर्मेंस डिवाइडेड टीम से कहीं आगे होगी। वीकनिंग अ पार्टी अमंग देम, एक पार्टी को फेवर करना, दूसरी पार्टी को सप्रेस करना या उसको डिप्राइव करना, वीक करना, ये उनका तरीका था। क्योंकि अगर दोनों पार्टियां बराबर की होंगी तो फिर तो वो दोनों आपस में लड़ लड़ के बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी। तो वो करते ये थे कि एक पार्टी को बहुत वीक कर दिया ताकि वो लड़ने का या मुकाबला करने का सोचे ही नहीं, और जो दूसरी पार्टी जिसको स्ट्रेंथन कर दिया वो उसको कंट्रोल करने में लगी रहे। और एज अ रिजल्ट जो लीडर है उसको क्वेश्चन कोई ना करे, उसको पूछे कोई नहीं। तो एक पार्टी को वीक कर दिया और दूसरी को स्ट्रांग कर दिया। और वीक करने का तरीका उन्होंने ये अपनाया था, स्लेइंग देयर सन्स एंड लेटिंग देयर गर्ल्स लाइव। तो जाहिर है जिस टीम में या जिस कबीले में सारी औरतें ही होंगी वो कमज़ोर होगी, और जहाँ सारे या ज़्यादातर मर्द होंगे तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो उसने ये टेक्निक इस्तेमाल की थी कि जो बनी इसराइल के लोग थे वहाँ जब भी कोई बच्चा पैदा होता था तो उसको वो मार देता था, और जब जो लड़की पैदा होती थी उसको वो छोड़ देता था। Verily he was of the corruptness। और ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली रिजल्ट इसका ये होता है कि वो बंदा करप्ट हो जाता है। और जैसे कहते हैं कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जब बंदा खुदा बन जाता है या अपने आप को खुदा समझना शुरू कर देता है और वो समझता है कि बस अभी मुझे कोई नहीं पूछ सकता, आई एम ऑल इन ऑल, आई हैव ऑल द पावर्स, एवरीबॉडी इज अंडर मी, आई कैन इशू एनी ऑर्डर्स एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। किसी को जिंदा छोड़ूं, किसी को मारूं, किसी से छीनूं, किसी को दूं, तो उसके बाद तो वो करप्शन में इन्वॉल्व हो जाता है और सब कुछ अपने हाथ में कंट्रोल करने के लिए सब कुछ अपने हाथ में ले लेता है। वो हर चीज़ को अपना समझना शुरू कर देता है। कौम का या वैसे तो जो हमारा प्यारे दीन का जो कंसेप्ट है, इस्लाम का जो कंसेप्ट है, वो ये है कि इंसान ज़मीन पे अल्लाह ताला का खलीफा है। और वो जो किंग होता है या लीडर होता है, वजीर आजम होता है, या टीम की बात करें हम तो जो टीम लीडर होता है वो he has to abide by the laws prescribed by अल्लाह ताला। जो अल्लाह ताला ने बाउंड्स रखी हैं, जो अल्लाह ताला ने लिमिट्स रखी हैं, जो अल्लाह ताला ने रूल्स रेगुलेशंस प्रेस्क्राइब किए हैं, उसके मुताबिक उसने काम करना है। he or she is not independent, he or she is not unanswerable, किसी को अनअकाउंटेबल ऐसे नहीं है, बल्कि वो चूंकि उसके इख्तियारात ज़्यादा होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा अकाउंटेबल होता है, और उसका हर एक्शन नोट किया जा रहा होता है और पूछने के लिए पूछा जा सकता है। जैसे हजरत उमर से किसी ने पूछा कि तुम्हारे पास दूसरी चादर कहाँ से आ गई। तो ऑल्दो एब्सोल्यूट
पावर वाली शख्सियत है एज फार एज वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स आर कंसर्न, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि आपने ये चादर कहाँ से ले ली है दूसरी। तो ही हैड टू अकाउंट फॉर दैट, ही हैड टू एक्सप्लेन इट कि ये चादर कहाँ से आई है। और हजरत अली को एक यहूदी काजी के पास ले गया, ज़रा का एक झगड़ा था, तो अ, और उस काजी ने फैसला यहूदी की फेवर में दे दिया, तो उसको एक्सेप्ट किया गया। तो अकाउंटेबल अगर आप अपने आप को समझेंगे तो फिर करप्शन नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपने आप को खुदा समझना शुरू करते हैं और अपने आप को सबसे ऊपर सबसे बड़ा समझना शुरू कर दें तो फिर करप्शन होती है। और जैसे मैंने पहले कहा, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो हमने ऐसा नहीं करना, हमने आपको अकाउंटेबल रखना है, एग्जाम नहीं करना है, लोगों को डिवाइड नहीं करना है। लोगों को डिवाइड जब नहीं करेंगे तो फिर वो लोग आपसे पूछेंगे, पीपल विल होल्ड यू अकाउंटेबल। लेकिन अगर आपने लोगों को डिवाइड किया हुआ, एक को वीक किया हुआ है, दूसरे को बहुत स्ट्रांग किया हुआ है, तो वो आपस में एक दूसरे को पूछ रहे होंगे, दबा रहे होंगे, क्वेश्चनिंग कर रहे होंगे, आपको कोई नहीं पूछेगा। तो अगर आपने लोगों को स्ट्रांग किया हुआ है, सारे लोगों को, सारी पार्टीज को, सारे ग्रुप्स को, और उनको आपस में एक दूसरे से नहीं लड़ा रहे, तो फिर वो आपको एग्जाल्ट नहीं करने देंगे, फिर वो आपको अनअकाउंटेबल नहीं रहने देंगे, बल्कि आपसे वो पूछेंगे। और दोनों ग्रुप्स को या सारे ग्रुप्स को स्ट्रेंथन करना है, सबके साथ जस्टिस करना है और सबको उनका हक देना है। तो अल्टीमेटली जो अल्टीमेट रिजल्ट है करप्शन वाला, वो उससे आप बच जाएंगे। बिकॉज यू विल बी नोइंग कि मुझसे लोग पूछेंगे, अगर मैंने एक चादर एक्स्ट्रा ले ली तो लोग मुझे पूछेंगे कि ये चादर कहाँ से आई है, तो मुझे जवाब देने के लिए मेरे पास नहीं होगा। तो और अगर आपको डर नहीं है कि मुझे कोई नहीं पूछ सकता, तो फिर ऑफ कोर्स करप्शन होगी। एंड अनफॉर्चुनेटली जो हजरत अली का बड़ा खूबसूरत फरमान है कि मुल्क शिर्क से चल सकता है लेकिन जुल्म से नहीं चल सकता, करप्शन होगी तो मुल्क नहीं चल सकता। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, लेकिन ये बेशक बाकी काम अच्छे होते रहें, लेकिन अगर करप्शन होगी सोसाइटी में या टीम में या कंपनी में या मुल्क में, तो वो शख्स जो है वो काम वही करेगा जिससे उसकी करप्शन को फर्दर प्रमोट हो सकेगी, उसको करप्शन का चांस मिल सकेगा। तो सेल्फलेसली जो सेल्फलेस लीडरशिप है ना, उसमें करप्शन नहीं हो सकती। वो वो टीमों की, कंपनियों की कामयाबी के लिए चाहिए होती है सेल्फलेस टीम, जो अपने इंटरेस्ट को कंपनी या मुल्क या कौम के इंटरेस्ट के ऊपर का कुर्बान कर सके। तो अगर आप अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देंगे, कंपनी को लो प्रायोरिटी देंगे, तो फिर उसमें वो कंपनी फिर फ्लरिश नहीं कर सकती, वो फिर फ्लरिश नहीं कर सकती। जो भी आप उसके लिए प्लानिंग करेंगे, जो भी आप उसके लिए स्कीम्स या जो भी आप उसकी बिजनेस प्लान बनाएंगे, जो भी आपके नए वेंचर्स होंगे, नए प्रोडक्ट्स होंगे, वो सारे इस तरह के होंगे जिसमें आपका अपना इंटरेस्ट ज़्यादा प्राइम होगा, और बाकी जो लोग हैं या कंपनी का इंटरेस्ट है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। तो हमारे पास टाइम अभी फिलहाल 1 मिनट रह गया है। वी कैन कंटिन्यू आवर लेसन आफ्टर रीजॉइनिंग दिस मीटिंग, और फिर अभी हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की बात करेंगे। सो फार एक नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर की एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन की आपको। हमने पॉजिटिव या गुड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर बनने के लिए इन चीज़ों को अवॉइड करना है, इनके बिल्कुल उलट करना है। अपने आप को एग्जाल्ट नहीं करना, अपने आप को टीम का हिस्सा समझना है, टीम जैसा समझना है, लोगों को यूनाइट करना है, किसी को वीक नहीं करना, और करप्शन तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है जी फवाद सर Right, sir. ब्रेक ना कर लें? जी।
break کرتے ہیں سر نا تھوڑی and we will meet again at 10. جی اوکے سر رائٹ اوکے Thank you. اللہ حافظ.